you are using Windows application or Windows Form application, then you can give a input by, or you can interact with the application by using user interface. Means one interface provided by the application. By that interface you can interact with the application, or we can call it as user can interact with the application by using user interface. So that is the basic difference between your console application and Windows application. So the next part of this session is your event handling. So what is event handling? So in our last session we have studied about the how to create a web Windows application, Windows Form application, how to put some tools into that application like buttons, or we can use a mouse on your application for interacting with the application by using user interface. So when events are occurring, what is event? So that we have to study in this session. So events are basically a user actions like key press. If you are giving any input from your keyboard, you press any key on the keyboard, so that basically a action generates a event. Okay, that basic action generates a event. Or clicks, any mouse clicks, or mouse movements, when you are moving mouse from one point to another point, that all the things are created that all actions are created one event. So what is event, we will see in a detail. So or some occurrences like system generated notification, so automatically generated notification by the operating systems. Applications need to respond to event when they occur. So any application, whatever the application design, by using your coding or programs, they can give a pop-ups, or any error messages. That is also a event which shows to the user. So clicking on a button or entering some text in a text box or clicking on a menu item, all are examples of events. So we can click any keyboard button, we can click on mouse buttons, we can move a mouse wheel, again we can move mouse pointer from one point to another point, or we can enter any value into the text box. So that all the things we can click on the menu bar. So that all the things are creating a event. So an event is an action that calls a function or may cause another event. So every event calls any function. Every event calls a function depending on the your event generation. Means if you are clicking on any button, if you are clicking on any button, then the button will generate one event, and that calls to a function. Whatever the action we have given in that function, that action will be executed. So जब भी हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, दैट बटन क्या करेगा, एक फंक्शन को कॉल करेगा, उस फंक्शन के अंदर हमने कुछ कोड लिखा होगा, दैट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड. ओके, सो हम देखेंगे वो किस तरीके से किया जाता है. देन इवेंट हैंडलर्स आर फंक्शंस दैट टेल्स हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट. सो एक इवेंट हैंडलर होता है, then that event handler shows the function how to execute that function or how to respond to that function. means अगर क्लिक बटन हो रहा है तो क्या आपको एक्शन देना है, अगर आपने माउस व्हील घुमाया तो क्या एक्शन देना है, अगर आपने राइट क्लिक किया तो क्या एक्शन देना है, आपने बटन प्रेस किया कीबोर्ड से तो क्या एक्शन देना है, किस मेनू के ऊपर आप क्लिक करते हो तो क्या एक्शन देना है. सो हर एक एक्शन के लिए देर आर डिफरेंट फंक्शंस आर डिजाइन by using the event handler. Event handler means क्या है, जो भी event occur होगा, some code is used for handling that event. Okay, some code is used for handling that event. So that is event handler. So वो respond करेगा आपके application के साथ. Then VB.NET is an event-driven language. There are mainly two types of events. So in the VB.NET language, there are two types of events: mouse event and keyboard event. So when you are pressing any key from the keyboard, that exactly generate any event. Again, when you are using a mouse, moving a mouse, or moving a wheel on a mouse, or we can clicking on a left button, right button, so that also generates a event. So माउस रहे आपका या कीबोर्ड रहे, कोई भी रहे, तो भी वो क्या करेगा, आपको इवेंट जनरेट करेगा. ओके, देन
हैंडलिंग माउस इवेंट. सो माउस इवेंट्स कब कब जनरेट होगा? सो फॉर हैंडलिंग द माउस इवेंट्स, फर्स्ट माउस इवेंट इज माउस डाउन. माउस डाउन मीन्स इट ऑकर व्हेन अ माउस बटन इज प्रेस. सो जब भी हम माउस की बटन प्रेस करेंगे तो माउस डाउन एक इवेंट ऑकर होगा. ओके. देन माउस एंटर, इट ऑकर्स व्हेन द माउस पॉइंटर एंटर्स द कंट्रोल. मीन्स अगर फ्रेम है, एक फ्रेम डिजाइन किया है आपने, एक फॉर्म डिजाइन किया है, अगर माउस पॉइंटर आपका उस फ्रेम के अंदर चला जाता है तब भी एक इवेंट जनरेट होता है, दैट इज माउस एंटर्ड इवेंट. देन माउस हॉवर, हॉवर मीन्स योर पॉइंटर, माउस पॉइंटर. सो इट ऑकर्स व्हेन अ माउस पॉइंटर हॉवर्स ओवर द कंट्रोल. अगर कुछ बटन्स है या कुछ कार्ड्स डिजाइन किए हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर एंड उसके ऊपर अगर आपका माउस चला जाता है तो दैट विल ऑलवेज शो जनरेट अ इवेंट. ओके. देन माउस लीव मीन्स अगर आप माउस का पॉइंटर वहाँ से बाहर हटा देते हो, मीन्स उस फ्रेम के बाहर निकाल देते हो, तो माउस लीव इवेंट जनरेट होगा. देन माउस मूव, अगर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगर आप पॉइंटर को मूव करते हो माउस के, तो माउस मूव जो भी है वो इवेंट ऑकर होगा. देन माउस अप मीन्स जब भी बटन प्रेस हुआ रहता है उसको आप रिलीज करते हो, दैट इज योर माउस अप इवेंट. एंड माउस व्हील इवेंट व्हेन यू आर मूविंग अ माउस व्हील, अगर आप आगे घुमाते हो या पीछे घुमाते हो, डिपेंड ऑन दैट माउस व्हील इवेंट जनरेट होता है. बाय यूजिंग दैट माउस व्हील यू कैन गिव अ एक्शन टू द एप्लीकेशन. मीन्स अगर आपने एग्जांपल में देखा होगा, अगर माउस अपने व्हील जो है आपने घुमाया तो उसके हिसाब से वो क्या होता है, कभी जूम इन जूम आउट भी होता है, कभी स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप होता है. सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इवेंट्स. ओके. सो दीज आर द माउस इवेंट्स. Again कुछ mouse events है. So the event handler of the mouse events get an argument of type mouse event argument. So mouse event argument क्या करेगा, एक event handler है. So उसके arguments में वो लेगा जो भी values है, ये जो values है वो argument में लेगा कि किस तरीके की action आपने perform की है. Depend on that action the mouse event will be generated and that mouse event is handled by your mouse event handler. Okay. Then the object is used for handling the mouse event. It has following properties. So उसमें properties है, button indicate the button of the mouse, वो left रहे या right button रहे तो वो button को show करेगा. Then clicks indicate the number of clicks, double click, single click. So depend on the click वो भी एक्शन, अगर आपने सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखा होगा, कभी हमने डबल क्लिक किया तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है, अगर ट्रिपल क्लिक किया तो पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाता है. सो दैट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर माउस इवेंट्स. ओके. देन डेल्टा मीन्स माउस व्हील जो होता है आपका, उसको रोटेट करना, आगे रोटेट करो या पीछे रोटेट करो, उसके ऊपर भी एक्शंस जनरेट होते हैं. देन एक्स एंड वाई एक्सिस मीन्स योर कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर माउस क्लिक, मीन्स जहाँ पे आपने क्लिक किया है आपके स्क्रीन के जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स है उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स वो शो करेगा. ओके. कि कहाँ पे क्लिक किया है एग्जैक्टली, तो वो भी आपको एक माउस हैंडलिंग इवेंट्स पास करेगा. देन हैंडलिंग कीबोर्ड इवेंट्स. सो कीबोर्ड इवेंट्स किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं? सो वेरियस कीबोर्ड इवेंट्स आर रिलेटेड विद द कंट्रोल क्लास. की डाउन, अगर आप कोई भी की प्रेस करते हो सो इट इज़ की डाउन इवेंट. की प्रेस ऑकर्स व्हेन अ की प्रेस एंड द कंट्रोल हैज़ फोकस. सो अगर आप कोई की प्रेस करके रखते हो, फॉर एग्जांपल कंट्रोल एंड कोई अगर कॉपी करने के लिए कंट्रोल एंड सी प्रेस करते हैं तो कंट्रोल हम प्रेस करके रखते हैं. सो दैट इज डिपेंड ऑन योर की प्रेस इवेंट. देन की अप मीन्स अगर आपने एक बटन प्रेस किया था वो रिलीज कर दिया है, दैट इज की अप योर कंट्रोल. द इवेंट हैंडलर्स ऑफ द की डाउन एंड की अप इवेंट्स गेट एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप की इवेंट आर्गुमेंट. दिस ऑब्जेक्ट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. सो जैसे हमने हैंडलर देखा था माउस का, उसी तरीके से कीबोर्ड का भी एक हैंडलर होता है. सो उसमें अल्टर है आपका, इंडिकेट्स व्हेन द अल्टर की इज प्रेस. कंट्रोल की अगर प्रेस करके रखा होगा तो वो. देन हैंडल, इट इंडिकेट्स वेदर द इवेंट इज हैंडल्ड और नॉट. सो अगर इवेंट हैंडल हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी अगर शो करना है आपको, चेक करना है, सो हैंडल, तो वो आपको आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो. देन की कोड, स्टोर द कीबोर्ड कोड फॉर द इवेंट. सो जो भी की आपने प्रेस किया है उसका एक यूनिक कोड होता है, यूनिक नंबर होता है, दैट विल बी stored in the arguments. Then key data, store the keyboard data for the event. उसका एक यूनिक की के साथ उसका एक नंबर भी होता है, मीन्स फॉर हर एक यूनिक की जो होता है उसके लिए एक यूनिक वैल्यू भी होती है. सो दैट वैल्यू मीन्स योर की डेटा.
देन की वैल्यू स्टोर्स द कीबोर्ड वैल्यू फॉर द इवेंट. सो फंक्शन कीज है या फिर नंबर कीज है या फिर लेटर कीज है या फिर कंट्रोल कीज है. सो दैट ऑल्सो depend on these key values. Then modifiers, it indicates which modifier keys control shift and alt. So these modifiers are used with the other keys. With other keys means अगर कंट्रोल करके आप Z करते हो तो अंडू होना चाहिए, कंट्रोल C करते हो तो कॉपी होना चाहिए. तो ये जो इवेंट्स है वो मॉडिफायर्स है. देन शिफ्ट, इट इंडिकेट्स इफ द शिफ्ट की इज प्रेस. सो राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ये जो कीज है उसके ऊपर भी एक एक इवेंट होता है. देन द इवेंट हैंडलर्स ऑफ अ की डाउन एंड की अप इवेंट्स गेट एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप की इवेंट आर्गुमेंट. दिस ऑब्जेक्ट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. सो ये जो आपके कीबोर्ड के कुछ वैल्यूज है उसको भी हैंडल करने का काम की इवेंट आर्गुमेंट ये हैंडल करता है. उसमें भी हैंडल्ड है. इंडिकेट इफ द की प्रेस इवेंट इज हैंडल, की प्रेस किया है कि नहीं किया है, उसके ऊपर उसका एक्शन जनरेट हुआ है कि नहीं वो चेक करने का काम करता है. देन की कैरेक्टर, जो भी की प्रेस किया है उसका जो भी कैरेक्टर होगा उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है. सो ये हो गए बेसिक आपके हैंडलिंग ऑफ इवेंट्स. सो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. ये यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक था, लेकिन हम एक एग्जाम्पल देखेंगे रन करके, प्रोग्राम बना के, कि किस तरीके से हमें उसे एग्जीक्यूट करना है. ओके, वेट फॉर अ मिनट. So I am sharing a screen. सो विजुअल स्टूडियो के अंदर हम प्रोग्राम्स करते हैं हमारे. सो स्क्रीन इज विजिबल. Yes, sir. सो दिस इज योर विजुअल स्टूडियो 2019. जितने भी लोगों के पास आपके सिस्टम्स है सब लोगों ने इंस्टॉल कर लो एंड उसके ऊपर प्रैक्टिस करो. ओके, सो इसमें हमें क्या करना है. देन इफ यू वांट टू जनरेट एनी इवेंट यू हैव टू कंपल्सरी create a Windows form application. Okay, when you are creating a event application or user interface application, then only you can create a event. So उसके लिए हमें क्या करना है, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन जनरेट करना है. सो किस तरीके से करते हैं हमने लास्ट सेशन में देखा था. सो फॉर दैट आई एम क्लिकिंग ऑन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. देन नेक्स्ट स्टेप इज select a language. So Visual Basic, platform, Windows, and we have to generate a desktop application. Okay, means your Windows Form application. And then इसके अंदर भी हमारा Windows Form application है बट विथ .NET नहीं है. सो विथ .NET हमें ढूंढना पड़ेगा. Windows Form application with .NET framework. So click on this, click on next. सो ये सबको अभी पता होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया है. इसमें मैं एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ एक, इट्स अ इवेंट डेमो. ओके, जहाँ पे भी डिफॉल्ट डायरेक्टरी वहाँ पे स्टोर हो जाएगा वो. एंड आई एम क्लिकिंग ऑन क्रिएट. सो इट विल जनरेट अ विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन. It will take some time.
So it is creating a project. Okay. So this is your form, this is your application window. Okay, इसके ऊपर हमें क्या करना है, we have to design a application. So हम एक छोटा सा application डिजाइन करेंगे. How to generate an event by using button and text box. Okay, so text box लेना है हमें and उसके साथ एक बटन लेना है. बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें वैल्यू शो करना है. ओके, सो हम उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाएंगे. सो यहाँ पे आपको टूल बॉक्स दिख रहा है. So from that toolbox we have to select a button. Okay, we can select a button, drag the button into the application and drop. Okay, so यहाँ पे बटन आ गए. उसके अगर credentials आपको चेंज करना है then you can change by using this property tab. property tab के अंदर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे अगर आपको इसके ऊपर का टेक्स्ट चेंज करना है. So मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लिक. ओके, बटन का नाम दे दिया मैंने क्लिक. अभी ये तो बटन जनरेट हो गया. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट वन टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स मीन्स आपका जो भी यूज़र इनपुट देता है वो टेक्स्ट बॉक्स है. सो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ. टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, एक मैसेज इनपुट देना है. इसका जो भी फॉन्ट है, कलर है, यू कैन चेंज. जिस तरीके से आपको चाहिए यू कैन चेंज. तो मैं अभी कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, सिंपल रख रहा हूँ. यहाँ पे ये बटन है, इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट आना चाहिए. जो भी मैं टेक्स्ट दूंगा वो टेक्स्ट आना चाहिए. सो यहाँ पे एक वैल्यू अगर आप देखोगे, सो इसका भी एक वैल्यू यूनिक रहेगा एंड इस बटन का भी एक वैल्यू यूनिक रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल वैल्यू. ओके, सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग एनी एप्लीकेशन और जब तक आपने प्रोग्राम्स देखे, अभी तक के हमने प्रोग्राम डिजाइन किए. So for each and every program you have given a variable name as a unique name for the variable. Okay, so इसका भी एक वैल्यू नेम या प्रॉपर्टी नेम रहता है, यूनिक नेम रहता है इसे आइडेंटिफाई करने के लिए. सो जैसे मैं यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या लिखा है, बटन 1. ओके, दिस इज अ नेम ऑफ योर बटन. ओके, तो ये बटन 1 मीन्स क्या है, नाम है आपके बटन का. सो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इसको. ओके, सो नेम ऑफ द बटन, तो यहाँ पे आप बटन को चेंज कर सकते हो. अगर आपको कुछ स्पेसिफिक बटन का नाम देना है, मीन्स सबमिट बटन होगी तो सबमिट नाम देना होगा. देन यू कैन रिसेट नेम, अगेन यू कैन गिव एनी लॉगिन नेम या फिर रजिस्टर नेम. सो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बटन लेता हूँ, सो इसका नाम अलग रहेगा. ओके, तो यहाँ पे अगर नेम देखोगे तो बटन 2 हो गया. इसका अगर नेम देखोगे तो बटन 1. सो यहाँ पे यूनिक नेम, यू कैन गिव यूनिक नेम टू दी ईच एंड एवरी टूल. ओके, सो ये टूल को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है. सो जैसे बटन को एक यूनिक नेम है बटन 1, वैसे टेक्स्ट बॉक्स को भी एक टेक्स्ट बॉक्स 1 करके नाम है. ओके, सो वो भी आप नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो डिज़ाइन में से. सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम एज SYCO2. ओके, मैंने एक नेम दे दिया SYCO2, तो इसका नाम चेंज हो गया. आप देखोगे यहाँ पे SYCO2. सो ये यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा SYCO2 नाम से. एंड बटन को नाम दे देता हूँ मैं एज कोई भी नाम दे सकते हो आप, ABC. ओके, सो ABC नाम दे दिया, तो ये बटन ABC नाम से सिलेक्ट की जाएगी. ओके, सो ये जो आप नाम देख रहे हो, नाम एंड टेक्स्ट वैल्यू दोनों में डिफरेंस है. अगर आप नाम एंड टेक्स्ट वैल्यू में डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे मैंने ABC नाम देने के बाद भी अगर आप देखोगे तो ये क्लिक ही लिखा है. सो टेक्स्ट वैल्यू मीन्स इफ यू वांट टू डिस्प्ले एनी स्टेटमेंट और एनी वैल्यू और एनी वर्ड ऑन योर बटन, दैट इज टेक्स्ट वैल्यू. ओके, अगर आपको ये बटन के ऊपर कुछ भी नाम देना है, सबमिट लिखना है, रजिस्टर लिखना है, लॉगिन लिखना है, रीसेट लिखना है या फिर अदर कुछ भी लिखना है, सो वो लिखने का नाम मीन्स आपका टेक्स्ट वैल्यू जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा. वेयर इट इज, ओके, ये ठीक है. सो ये टेक्स्ट वैल्यू है, यहाँ पे आप नाम कभी भी चेंज कर सकते हो. ओके, देन इसका जो
नेम है, नेम मीन्स योर यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नेम। सो ये जो नाम है टेक्स्ट नाम, ये आप सेम सेम रख सकते हो दो बटन का, लेकिन ये जो यूनिक नेम है ABC वो आप सेम नहीं रख सकते। ओके, ये यूनिक ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये प्रोग्राम के अंदर इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट कंट्रोल। ओके, सो ये जो आपका बटन है वो क्रिएट हो चुका है। इसको आप छोटा बड़ा जितना करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसका टेक्स्ट साइज बढ़ा सकते हो, ये सब प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिए, कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर चेंज कर सकते हो, अलग अलग टाइप के वैल्यूज आप इसको दे सकते हो। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल एक बटन क्रिएट किया है, देन वन टेक्स्ट बॉक्स आई हैव क्रिएटेड, उस नेम इज SYCO2, ये नाम उसको मैंने असाइन कर दिया है। सो अभी इसका जो बैकग्राउंड कोड है हमें उसके ऊपर जाना है। सो सबसे पहले बैकग्राउंड कोड में क्या करना है, सो व्हाट इज इवेंट। इवेंट मीन्स क्या है, जैसे ये मेरा माउस देखो आप यहाँ पे मूव हो रहा है, जैसे ही माउस यहाँ पे आ रहा है, अभी ये माउस क्या चेंज होगा, एक्शन चेंज हो रही है। देखिए ये माउस इधर क्या है, पॉइंटर बता रहा है, यहाँ पे आने के बाद मूव पॉइंटर बता रहा है, मीन्स ये बटन को मैं मूव कर सकता हूँ। सो दैट इज ऑल्सो अ इवेंट, मीन्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है, ये एप्लीकेशन को पता है कि ये माउस अगर मूव कर रहा है तो उसका क्या एक्शन होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे आता है तो इसको भी मूव करने का, लेकिन ये रन करने के बाद अलग अलग एक्शन आएगा। बटन के ऊपर आने के बाद क्लिक का एक्शन आएगा, इसके ऊपर आने के बाद वो इनपुट देने का एक्शन आएगा। So depend on the tools or controls, the mouse action will be change. Okay, so यहाँ पे आप एक रियल टाइम एग्जांपल में देख सकते हो कि आपने माउस के इवेंट्स देखे थे। तो ये मैं फॉर्म के अंदर हूँ अभी, ये हमने फॉर्म लीव कर दिया। इसके बाद अगर यहाँ पे आया तो ये देखिए आपको यहाँ पे माउस बटन आने के बाद ऑटोमेटिकली ये पॉपअप हो रहा है। सो ये सब इवेंट्स है, ये सब इवेंट्स है, माउस के इवेंट्स जो ऑलरेडी डिजाइन करके रखे हुए हैं। सो डिपेंड ऑन दैट इवेंट ये आपको शो कर रहा है। देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वो शो करेगा। ओके, सो ये माउस के हो गया। अभी कीबोर्ड का इवेंट मीन्स क्या है, जब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड कुछ टाइप करता हूँ, और यहाँ पे टाइप करने के बाद बटन वहाँ पे वो टाइप हो रहा है, मीन्स दैट इज द कीबोर्ड इवेंट। सो उस तरीके के इवेंट्स हमें यहाँ पे जनरेट करना है। सो अभी ये जो फॉर्म है उसके ऊपर हमें इवेंट क्या जनरेट करना है, वी हैव टू क्रिएट अ इवेंट बाय ऑन दिस बटन। सो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक मैसेज जो यहाँ पे आना चाहिए, वो मैसेज क्या होगा वो डिपेंड करेगा आपके, वेट अ मिनट किसी ने रिक्वेस्ट सेंड किया। ओके, सो वो क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा मैसेज। तो वो किस तरीके से होगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ एंड उसके ऊपर इस बटन के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ओके, इस बटन के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। सो यू हैव टू डबल क्लिक ऑन दिस बटन, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका कोड बैकग्राउंड में जनरेट हो जाएगा। ओके, सो ये देखिए मैंने जैसे डबल क्लिक किया ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पे बैकग्राउंड में कोड क्रिएट हो गया। देन बटन के ऊपर मैंने डबल क्लिक करने के बाद एक आर्गुमेंट जनरेट हुआ है। आर्गुमेंट मीन्स एक फंक्शन जनरेट हुआ है, दैट इज ABC बटन एंड विच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज, क्लिक फंक्शन। तो मैंने क्लिक करने के बाद एक क्या एक्शन जनरेट होना है उसका एक फंक्शन जनरेट कर दिया है। देन क्या लेता है, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, मीन्स जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट लेगा एज अ इवेंट आर्गुमेंट। ओके, जैसे हम इवेंट्स के देखा था क्वेश्चंस में। सो इवेंट आर्गुमेंट क्या करेगा, वहाँ से क्या इवेंट जनरेट हो रहा है, मीन्स क्लिक कर रहे हैं हम, उसके ऊपर पॉइंटर आ रहा है कि क्या आ रहा है, उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है इवेंट आर्गुमेंट। सो ये इवेंट आर्गुमेंट लेगा एंड उस तरीके का एक्शन यहाँ पे जनरेट करेगा। देन हैंडल्स ABC क्लिक मीन्स ये क्या कर रहा है, एक हैंडलर है, उस हैंडलर को क्या करना है, एक टास्क देना है हमें कि टास्क वो क्या परफॉर्म करेगा। ओके, सो ये एप्लीकेशन तो हमारा रेडी है। अगर आपको देखना होगा तो हम इसे क्या कर सकते हैं, रन करके देख सकते हैं। ओके, एम आई ऑडिबल? ओके, सो मैंने रन बटन के ऊपर क्लिक किया है। सो यू कैन सी दिस इज बिल्डिंग एप्लीकेशन। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे बिल्ड कर रहा है वो। बिल्ड करने के बाद आपको एक विंडो शो करेगा। ओके, सो अभी तक हमने कोई भी एक्शन उसमें दिया नहीं है कि क्या टास्क परफॉर्म करना है, वो टास्क हम देखेंगे। पहले हम रन करके देखते हैं उसे। सो रन करने के बाद हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे इस तरीके का जनरेट होगा। अभी देखिए, सो रिक्वेस्ट टाइम में होते जाओ। ओके, सो ये हमारा एप्लीकेशन डिज़ाइन हो चुका है। व्हाट वी हैव डिजाइन यार, वन बटन
एंड वन टेक्स्ट फील्ड। ओके, सो एक बटन लिया है हमने एंड एक टेक्स्ट फील्ड लिया है। तो जब भी हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक इवेंट जनरेट होना चाहिए एंड इवेंट जनरेट होने के बाद इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड है जहाँ पे मैंने अगर बटन के ऊपर क्लिक भी किया तो कोई भी इवेंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने भले ही फंक्शन क्रिएट किया है बट मैंने उसको हैंडलर नहीं दिया है, मैंने उसको एक्शन नहीं दिया है, तो तब तक वो एक्शन जनरेट नहीं करेगा। ओके, सो हमारे पास ये एक टेक्स्ट फील्ड है। अभी आप देख सकते हो ये फॉर्म के अंदर मेरा माउस पॉइंटर है, इसके बाहर अगर जाता है तो वो डिपेंड ऑन अदर विंडोज के ऊपर फोकस कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर आता हूँ, इस यहाँ पे अगर देखोगे आप थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा। ठीक है, ये बटन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आता है तो ये चेंज होता चेंज हो रहा है। सो दैट इज डिपेंड ऑन योर इवेंट जनरेशन। तो यहाँ पे आने के बाद इवेंट क्या हो रहा है, माउस का इवेंट चेंज हो रहा है एज अ टेक्स्ट इनपुट। तो यहाँ पे वो इनपुट लेने के लिए बता रहा है। अगर यहाँ पे आ रहा है तो बटन इवेंट, बटन इवेंट में क्या हो रहा है, अगर आप क्लिक करोगे तो उसके ऊपर इवेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। देन what we have to do, double click on this, so we have to give a task or we have to give a action, whatever the action you want to give you can give a action। so हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है, क्या नाम दिया था हमने टेक्स्ट बॉक्स को, SYCO2, तो वो दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे SYCO2 मैंने उसको टैप कर दिया। ओके, सो टैप करने के बाद डॉट, उसकी वैल्यू हमें चेंज करना है, किसकी, टेक्स्ट वैल्यू हमें चेंज करना है। जैसे मैंने डिफरेंस बताया था, टेक्स्ट वैल्यू एंड योर यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू क्या है उसकी, SYCO2 यूनिक नंबर और यूनिक नेम, एंड टेक्स्ट वैल्यू मीन्स क्या है आपका टेक्स्ट जो भी उसके अंदर दिखेगा। ओके, सो हमें क्या करना है, SYCO2 यूनिक नंबर डॉट टेक्स्ट, एंड उसमें हमें क्या कर देना है, एक वैल्यू असाइन कर देना है। वैल्यू क्या रहेगी आपकी, डबल कोट के अंदर। सो मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, वेलकम टू JSPM पुणे। ओके, ये एक मैसेज दे देता हूँ मैं। सो ये मैसेज हम क्या करेंगे, हमारे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। सो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। ओके, सो जैसे ही सेव करेंगे आपको यहाँ पे तो ब्लैंक ही एप्लीकेशन दिखेगा, लेकिन जैसे हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए अभी एक्शन क्या जनरेट हो रहा है। फॉर्म हमारा रन हो गया। ओके, फॉर्म रन होने के बाद हमें क्या करना है, क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करना है। अभी जब मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। सो क्लिक करने के बाद देखिए आप मैसेज आएगा, वेलकम टू JSP पुणे। तो मैंने क्या किया था, एक टेक्स्ट वैल्यू दिया था किसे, उस टेक्स्ट फील्ड को, बट वो कब हुआ, जब मैंने क्लिक इवेंट जनरेट किया ऑन बटन। सो जब भी हमने क्लिक इवेंट जनरेट किया ऑटोमेटिकली वो क्या किया, उसने माउस इवेंट का जो भी क्लिकिंग इवेंट है, मीन्स योर माउस डाउन सेंड किया है इस बटन के ऊपर, एंड वो बटन के ऊपर सेंड करने के बाद वो कहाँ पे गया है, उसके आर्गुमेंट्स में गया। देन आर्गुमेंट से उसे क्या पता चला, हैंडलर को क्या करना है, एक्शन वी हैव टू जनरेट, उस टेक्स्ट बॉक्स को हमें क्या करना है, एक वैल्यू असाइन करनी है। तो इस तरीके से इवेंट्स जनरेट होते हैं आपके एप्लीकेशंस में। ओके, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें आप इवेंट्स जनरेट कर सकते हो। अभी फिर से एक इवेंट आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें अभी हमने ये टेक्स्ट बॉक्स के साथ वैल्यू असाइन किया है, समझ में आया सबको, एवरीवन अंडरस्टूड द कंसेप्ट? किसी को कोई डाउट होगा तो अभी पूछ लो। सर ये पीछे क्या हो रही है, MB करके ये प्रोसेसिंग CPU कितना यूज हो रहा है, देन मेमोरी कितनी यूज हो रही है वो एप्लीकेशन, क्योंकि ये एप्लीकेशन हमने रन किया अभी, तो ये एप्लीकेशन कितना मेमोरी ले रहा है, CPU प्रोसेस कितना ले रहा है, वो कितना परसेंट ले रहा है। जैसे हमारा टास्क मैनेजर होता है ना, टास्क मैनेजर के अंदर देता है वो, वैसे ही एक डायग्नोस करके रहता है कि एप्लीकेशन कितना यूज कर रहा है। ओके, सो ये हो गया एक सिंपल एप्लीकेशन जहाँ पे हमने एक माउस का इवेंट जनरेट किया है। ओके, जहाँ पे हमने एक सिंगल क्लिक किया बटन के ऊपर, ऑटोमेटिकली माउस यहाँ पे वैल्यू आ गई। अगर हम इसी को थोड़ा सा और चेंज करना चाहते हैं तो देखिए हम क्या करेंगे, एक ये तो क्लिक का बटन हो गया, मैं यहाँ पे एक रीसेट का भी बटन दे देता हूँ। ओके, सो इस बटन के ऊपर अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट उसका चेंज करेंगे एज अ रीसेट।
वैल्यू मैंने चेंज नहीं किया है, बटन 1 ही रख दिया है मैंने, डबल क्लिक मैंने कर दिया तो ऑटोमेटिक देखोगे यहाँ पे बटन 1 आ रहा है नेम। ओके, सो यूनिकली बटन 1 हैंडल होगा। एंड क्या करना है हमें, SY CO2 जो टेक्स्ट है उसकी टेक्स्ट वैल्यू क्या कर देना है हमें, इज इक्वल टू एम्प्टी कर देना है। ओके, इज इक्वल टू एम्प्टी, रीसेट में मैंने क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। अगेन हम रन करके देखते हैं एप्लीकेशन, और जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करने लगोगे ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा उसके अंदर, एंड वो इंटरेस्ट के साथ आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर पाओगे, तो इजीली आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे अभी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक मैसेज आएगा, वेलकम टू द JSP। अगर रीसेट करता हूँ तो मैसेज चला जाएगा, क्लिक करता हूँ मैसेज आ रहा है, रीसेट कर रहा हूँ मैसेज चला जा रहा है। ओके, सो इस तरीके से आप इवेंट्स दे सकते हो एप्लीकेशन को। अगर अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ यहाँ पे इवेंट दिया है कि यहाँ से जो भी डेटा मैंने सेंड किया वो यहाँ पे सेंड किया है। बट अगर आप कुछ फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें आपने फील्ड्स लिए हैं, सो वो फील्ड्स का डेटा आप डेटाबेस में भी भेज सकते हो। आगे आगे आपको वो भी एप्लीकेशन आएंगे कि डेटाबेस में आप कैसे डेटा भेज सकते हो। सो ये सिंपल एग्जांपल है हाउ टू जनरेट अ इवेंट बाय यूजिंग योर माउस और कीबोर्ड। ओके, सो एक कीबोर्ड का भी इवेंट यहाँ पे देख लेते हैं। कीबोर्ड का इवेंट देखने के लिए अभी यहाँ पे सिंपल अगर आप एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हो, सो सिंपल एक इवेंट लेंगे हम। मैं कोई भी वैल्यू इसकी चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप जब एप्लीकेशन बनाओगे तो आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, 2 टेक्स्ट बॉक्स है, एक अगर आप क्लिक करोगे तो मैसेज शो करेगा, दूसरा है उसको कुछ भी वैल्यू हमने दिया नहीं है। बट यहाँ पे मैं अगर कुछ टाइप करता हूँ SYCO2, तो इस तरीके से ये भी इवेंट जनरेट कर रहा है। मीन्स मैंने अगर बटन प्रेस किया है तो वो बटन प्रेस करने के बाद क्या बटन, किस बटन को प्रेस किया है, क्या वैल्यू है उसकी, वो जनरेट हो रहा है। उसके साथ उसने कोई मॉडिफायर यूज़ किया है क्या, मैंने जैसे शिफ्ट प्रेस करके अगर कोई बटन प्रेस किया तो वो कैपिटल में दे रहा है। सो डिपेंड ऑन दी जनरेशन ऑफ योर इवेंट वो आपको इनपुट शो करेगा। तो मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा हूँ, मॉडिफायर्स यूज़ कर रहा हूँ, कुछ शिफ्ट प्रेस करके रख रहा हूँ, तो वो सब इवेंट ऑटोमेटिकली ले रहा है एंड ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है वहाँ पे उस तरीके के चेंजेस कर रहा है। अगर मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया, सिर्फ कीज प्रेस कर रहा हूँ, सो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इनपुट देगा। तो ये एक है कीबोर्ड का इवेंट जनरेशन। ओके, सो ये बैकग्राउंड में होते रहता है, हमें उसको कोई एक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लेते रहता है। सिर्फ आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर आप कुछ इवेंट जनरेट करना चाहते हो तो हाउ वी कैन जनरेट अ इवेंट। कुछ ऐसे होते हैं कंट्रोल्स जिसके ऊपर आप इवेंट जनरेट ही नहीं कर पाते हो, उनको कहा जाता है पैसिव इवेंट्स और पैसिव कंट्रोल्स। ओके, जिनके ऊपर आप इवेंट्स जनरेट करते हो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव कंट्रोल्स, एंड जो इवेंट जनरेट नहीं होते वो पैसिव कंट्रोल्स होते हैं। अभी पैसिव कंट्रोल्स मीन्स क्या, सो फॉर एग्जांपल लेबल। ओके, लेबल, जैसे लेबल के ऊपर अगर आप कोई वैल्यू देते हो, टेक्स्ट वैल्यू इवेंट डेमो में दे देता हूँ यहाँ पे, सो ये एक मैंने लेबल यहाँ पे असाइन कर दिया है। सो अगर आप प्रोग्राम रन करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे आप इसके ऊपर जाओगे तो एक अलग एक्शन जनरेट हो रहा है, इसके ऊपर भी जाओगे तो अलग एक्शन, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक्शन जनरेट हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ एक्शन जनरेट हो रहा है। बट इसके ऊपर अगर जाओगे आप तो कुछ भी नहीं होगा, कितना भी क्लिक करो क्या करो आप कुछ भी नहीं होगा इसके ऊपर। सो दिस इज अ पैसिव कंट्रोल। ओके, जिसके ऊपर कोई एक्शन हम दे नहीं सकते, दैट इज पैसिव कंट्रोल। ये सिर्फ आपको कोई नेम्स देना है, यू हैव टू गिव एनी हेडिंग्स और कुछ टेक्स्ट प्रिंट करना है आपको, तो नॉर्मली आप लेबल्स यूज कर सकते हो। वो पैसिव कंट्रोल है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं दे सकते आप। ओके, सो यू अंडरस्टूड। ओके, सो अभी एक फिर से मैं इवेंट या रीसेट बटन होगी, यहाँ पे मैं एक पॉपअप बटन दे देता हूँ। पॉपअप बटन इन द सेंस बटन ही है, उसके ऊपर अलग इवेंट देते हैं। ओके, तो इस बटन के ऊपर मैं दे देता हूँ शो नाम देता हूँ मैं। इस बटन का नाम है बटन 2। ओके, बटन 2 नाम है। शो बटन क्रिएट किया मैंने। ये सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमें। So the controls are already present in your toolbox. We have to drag that tool
फ्रॉम टूल बॉक्स एंड वी हैव टू ड्रॉप ऑन द फॉर्म। सो मैंने ड्रैग किया बटन को, यहाँ पे फॉर्म पे ड्रॉप किया, टेक्स्ट वैल्यू उसकी चेंज किया, बाकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगर आप चेंज करना चाहते हो सो आप डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज़ इसे असाइन कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज़ है, अगर आप देखोगे तो वो वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर भी चूज़ कर सकते हो। वेब कलर्स है, जैसे मैंने ये ले लिया, सो बटन का कलर चेंज हो गया। सो ये प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ आप आपके हिसाब से और डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे जैसे आगे आप पढ़ते जाओगे तो आपको वो आते जाएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये शो बटन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। उसके ऊपर हमें एक्शन क्या करना है, कुछ मैसेजेस होते हैं, पॉपअप मैसेजेस, वी कैन कॉल इट एज क्या बोलते हैं उसे, पॉपअप मैसेजेस ही बोलेंगे। छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है, उसके ऊपर कुछ एरर आता है तो एरर मैसेज आता है, कुछ वेलकम मैसेज आता है, तो उस तरीके का पॉपअप विंडो हम उसे मैसेज बॉक्स कहा जाता है। सो मैसेज बॉक्स हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने ये शो बटन ले लिया है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डबल क्लिक ऑन दैट शो बटन। सो शो बटन का कोड, हैंडलर कोड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वी हैव टू गिव अ वन मैसेज बॉक्स। जब भी हम प्रेस करेंगे आपकी बटन, शो बटन, उसके अंदर हमें क्या करना है, मैसेज बॉक्स प्रिंट करना है। सो उसके लिए हमारे पास है यहाँ पे मैसेज बॉक्स, ये आपको दिखेगा यहाँ पे मैसेज बॉक्स। उसमें क्या मैसेज देना है हमें, जो कुछ भी आपको मैसेज देना है, वेलकम टू SYCO2। ये एक मैसेज दे देते हैं। एंड वी हैव टू डिफाइन अ टाइप ऑफ मैसेज, वी हैव टू डिफाइन अ टाइप ऑफ मैसेज। टाइप ऑफ मैसेज मीन्स क्या है कि वो ओके बटन है, या फिर कैंसिल बटन देना है उसके साथ, या फिर अबॉर्ड बटन देना है उसके साथ, या रिट्राई बटन देना है, या इग्नोर बटन देना है, या फिर यस बटन देना है, नो बटन देना है। सो उस टाइप का मैसेज, इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए उसकी, किस टाइप का होना चाहिए, एरर मैसेज है कि नहीं है, वो उस तरीके से आपको उसको डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इंफॉर्मेशन टाइप का मैं स्टाइल दे दूँगा उसको। ओके, सो स्टाइल देने के लिए हमारे पास है मैसेज स्टाइल। यहाँ पे आप देखोगे तो मैसेज स्टाइल है, यहाँ पे टैप कर दिया मैंने डॉट। अभी मैसेज स्टाइल में आप अलग अलग टाइप के स्टाइल्स दे सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रिटिकल है, डिफ़ॉल्ट बटन है, एक्सक्लेमेशन है, इंफॉर्मेशन है, सो डिफरेंट, ओके, कैंसल, ओके ओनली, क्वेश्चन, रिट्राई, यस, नो, इस टाइप के आप मैसेजेस दे सकते हो, कोई भी टाइप का। जिस टाइप का आपको एरर मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन मैसेज देना है, मैं एक सिंपल इंफॉर्मेशन मैसेज दे रहा हूँ। एंड एंटर प्रेस। ओके, सो इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया है। अभी इन्फॉर्मेशन हमें क्या देना है उसके ऊपर, सो जैसे मैं ओके, यहाँ पे टाइटल बार रहता है, टाइटल बार जैसे रहता है वहाँ पे मैं यहाँ पे क्या टाइटल दे देता हूँ, दैट इज वेलकम। ओके, ये इन्फॉर्मेशन टाइटल है, वो टाइटल मैंने यहाँ पे दे दिया एंड मैंने सेव कर दिया। देयर इज नो नीड टू गिव एनी सेमीकोलन टू द एंड ऑफ द स्टेटमेंट इन योर VB.NET। ओके, सो ये हमारा कोड हो गया, मैंने सेव कर दिया है। इसके बाद हम फॉर्म के ऊपर आते हैं एंड स्टार्ट करते हैं रनिंग। सो जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जैसे हमारे पहले के इवेंट्स है वो तो जनरेट होगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा मैसेज आ रहा है, रीसेट करने के बाद मैसेज चला जा रहा है। देन शो के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए ये मैसेज आ रहा है, पॉपअप मैसेज। क्या है टाइटल उसका, वेलकम, एंड मैसेज क्या है उसके अंदर, वेलकम टू SYCO2, एंड ओके बटन आ गया उसके साथ बाय डिफॉल्ट। ओके, मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए सिर्फ, सो इसमें आप इन्फॉर्मेशन ऐसे दे सकते हो। ओके, ओके कर दिया, क्लोज हो गया। अगर आप उसको चेंजेस करना चाहते हो तो उसमें आप इन्फॉर्मेशन की जगह पे कुछ दूसरा दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अवॉर्ड कर सकते हो, या फिर ठीक है, रिट्राई देखते हैं हम करके। सॉरी, रिट्राई कैंसिल। सो इसको हम रन करते हैं फिर से। सो देखिए थोड़ा सा मैसेज चेंज हो गया है, मैसेज तो वही है लेकिन
फॉर्मेट चेंज हो चुका है। यहाँ पे रिट्राई बटन आ गया, कैंसिल बटन आ गया, रिट्राई प्लस कैंसिल मैंने लिखा था वहाँ पे लिखा है, इसीलिए रिट्राई प्लस कैंसिल आ गया। सो इस तरीके से आप आपके मैसेजेस दे सकते हो, रिट्राई करना या फिर कैंसिल करना, उसके ऊपर भी आप इवेंट्स दे सकते हो। सो उस तरीके से एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है। तो ये सिंपल हमें क्या करना था, इवेंट, हाउ टू जनरेट अ इवेंट बाय यूजिंग योर माउस और कीबोर्ड इन योर VB.NET एप्लीकेशन। सो ये हमें देखना था। तो हम सिंपल एग्जांपल्स देखा है हमने कि उसमें टेक्स्ट बॉक्स लिया है, बटन लिया है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इवेंट क्या हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स में अब टाइप करते हैं, कीबोर्ड से इवेंट किस तरीके से जनरेट हो रहा है वो हमें देखना था। मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हमारे पास अवेलेबल है। आगे आगे जैसे हम प्रोग्राम्स देखेंगे उस तरीके से हम उसके डिजाइनिंग्स देखेंगे। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड द कंसेप्ट? ओके, यस सर। सो इसके बाद वाले जो भी है आपके कंसोल के प्रोग्रामिंग से, वो आगे हम देखेंगे कि कंसोल का प्रोग्राम किस तरीके से लिया जाता है, वो भी हमने देखा था। सो उसके प्रोग्राम से एंड उसके कुछ डिफरेंट फंक्शनिंग है वो देखेंगे हम। सो यूनिट 2 हम स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट 1 खत्म हो गया था, यूनिट 2। ओके, सो यूनिट 2 में क्या है देखिए, डिसीजन कंट्रोल्स एंड लूप कंट्रोल। सो डिसीजन कंट्रोल्स, व्हाट इज डिसीजन कंट्रोल, व्हाट इज लूप कंट्रोल, you might be, I know you are aware about these two definitions, decision control and loop control. So in decision control, what it includes your if statement, if else statement, then your switch statements. Again, in your looping control, for loop, while loop, do while loop, for each loop. So these are the looping concept. So in this unit, what we have to study, we have to study about the data types. So you all are aware about the data types. Only the syntax will be changed in your VB.NET application. Okay. So data types आपको पता है, कोई भी अगर आपको डेटा का टाइप स्पेसिफाई करना है, so we use already declare means your predefined words, that keywords that we use for a declaration of data type. For example, integer, float, character, then long, double, byte, boolean. So these are the data types. We already know about the data types in detail. So we have to use that data type in your VB.NET also. But the difference is when you are using the data types in your VB.NET application, you have to use the only in the form of class and object. Okay, means it is called as instance. Okay, it is called as instance. So in instance के टाइप में हमें यूज करना है, क्लास के फॉर्म में यूज करना है। अगर आप इंट यूज कर रहे थे वहां पे, यहाँ पे इंटीजर लिखना है आई कैपिटल। ओके, इस तरीके से हम इसे स्पेसिफाई करते हैं इन डेटा टाइप्स। ओके, वो देखेंगे हम डिटेल में। देन उसके बाद हमें ऑपरेटर्स देखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। यू ऑल नो अबाउट द ऑपरेटर्स, arithmetic operator, logical operator, bitwise operator, relational operator, assignment operator. The concepts are same, only the syntactical changes are there. Then control structure, if, what is the use of if, what is the use of if else. Then select case means your switch case. Okay, so in the previous programming language you have studied about this select switch case. Here it is select case. Okay, the concept is same, only the word is changed. If statement, if else, then your nested if else ladder, then your select case. Select case means your switch case. Then in loop we have to study about the for loop, while loop, do while loop means your do loop in this VB.NET. Then for each loop, means your for loop, it is used for accessing the array elements or list elements or collection of similar types of elements. Okay, so वो भी हम देखेंगे. Then फॉर्म कंट्रोल इन VB.NET. सो जिस तरीके से फॉर्म्स हमने अभी देखा था, फॉर्म कंट्रोल मीन्स क्या है, हमारा विंडोज एप्लीकेशन किस तरीके से डिजाइन किया जाता है एंड उसमें क्या क्या होते हैं, बटन्स क्या होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, लेबल क्या है, रेडियो बटन्स क्या है, चेक बॉक्स क्या है, लिस्ट क्या है, कम्बो बॉक्स, पिक्चर बॉक्स, पैनल, टैब कंट्रोल, टाइमर, ये सब हमें देखना है एक एक इन डिटेल। सो हमने जो अभी एप्लीकेशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो देखा था। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट दी हाउ we can specify or how we can elaborate that control in your application. Okay, so वो हमें देखना है यहाँ पे। So सबसे पहले हमारे पास है data types. So you all are aware about the data type.
data type refers to an extensive system used for declaring variables or functions of different types. So different types के हम function define करते हैं या फिर variable declare करते हैं that by using your data types. The types of a variable determine how much space it occupies in storage and how the bit pattern stored in the is interpreted. Okay, so data type का दो main use है. First one is the use of data type is to specify a variable type. Okay, to specify a type of variable means अगर variable को आपको कुछ type देना है कि किस टाइप की वैल्यू उसके अंदर हमें स्टोर करना है, that is by using we can differentiate by using data type. Okay, so दूसरा उसका एक मीनिंग है कि स्टोरेज एलोकेशन मीन्स मेमोरी एलोकेशन. सो जब भी हम एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे हमें कुछ वैल्यू अगर स्टोर करना है तो उसके लिए मेमोरी लगेगी एंड वो मेमोरी हमें कहाँ से मिलेगी, बाय यूजिंग दिस डेटा टाइप. सो हर एक डेटा टाइप को एक साइज होता है जो कि मेमोरी के अंदर अलोकेट होते जाता है. सो बुलियन डिपेंड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लेटफॉर्म. बाय डिफॉल्ट इट इज़ 1 बाइट का रहता है बुलियन का, जिसमें वो ट्रू और फॉल्स डिफाइन करता है बुलियन का. देन बाइट इज यूज फॉर 1 बाइट, कैरेक्टर इज यूज फॉर 2 बाइट, date is used for 8 bytes, then double is used for 8 bytes again. So here it is a date data type which is used to store the date of the date values. Okay, then integer 4 byte, long 8 byte, object means you can specify a object of any class. So object के लिए भी हर एक इसमें अलग अलग टाइप दिया है. 4 बाइट का 32 बिट अगर प्लेटफॉर्म होगा, 64 बिट अगर होगा तो 8 बाइट आपको स्टोरेज मिलेगा. देन शॉर्ट मीन्स योर 2 बाइट का स्टोरेज रहेगा. एंड स्ट्रिंग डिपेंडिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लेटफॉर्म मीन्स 64 बिट है तो उसके इसमें कितना लेता है वो एक कैरेक्टर के लिए. देन 32 बिट है तो उसकी इसमें कितना लेता है एक कैरेक्टर के लिए. सो डिपेंडिंग ऑन बिट वो स्ट्रिंग लेगा, क्योंकि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. ओके, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. सो कुछ बताने की ज़रूरत है कि बाइट में क्या कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, बाइट वैल्यू स्टोर होगी. कैरेक्टर में एक सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर होगी. डेट में डेट की वैल्यू स्टोर होगी. डबल के अंदर आपकी पॉइंट वाली वैल्यूज़ जो है फ्लोटिंग वैल्यूज़ वो स्टोर होगी. इंटीजर के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी. अगर इंटीजर की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो लॉन्ग में स्टोर कर सकते हैं. क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, सो ऑब्जेक्ट इज द डेटा टाइप. शॉर्ट वैल्यू मीन्स इंटीजर वैल्यू है बट छोटी वैल्यू है तो उसको अगर आपको स्टोर करना है तो यू कैन स्टोर इन अ शॉर्ट. स्ट्रिंग मीन्स कैरेक्टर ऑफ एरे या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना है, सो वी विल यूज स्ट्रिंग डेटा टाइप. ओके, अंडरस्टूड. सो ये एक थोड़ा सा देख लेते हैं छोटा सा एग्जांपल. सो इस फॉर C and C++, how we can declare a data type or a variable, data type name and variable name. Okay, so एक data type name दे देते हैं, उसके आगे हम variable name देते हैं. For example, integer num1 या integer a, integer b, इस तरीके से हम values declare करते थे. यहाँ पे किस तरीके से value declare करना है? So यहाँ पे एक dim नाम का कीवर्ड है, dim नाम का कीवर्ड है, उसको यूज करना है एंड एज आपको शो करना है कि किस टाइप का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. अभी ऑब्जेक्ट मैंने क्यों कहा है, बिकॉज बाइट, इंटीजर, डबल, डेट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बुलियन, दीज ऑल आर अ क्लासेस. ओके, दीज ऑल आर अ क्लासेस एंड जो भी आप उसका वेरिएबल क्रिएट करेंगे दैट इज अ ऑब्जेक्ट, दैट इज अ ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो क्रिएट होगा. डिम बी एज बाइट. बी एज बाइट मीन्स हमने जैसे बाइट बी लिखते थे वहाँ पे, वैसे यहाँ पे क्या है, डिम बी एज बाइट. So declaration of any variable in a VB.NET is as dim b as byte, dim n as integer, dim d as double. मीन्स यहाँ पे वेरिएबल नाम आप कुछ भी रख सकते हो. यहाँ पे b लिखा है आप कुछ भी लिख सकते हो, n लिखा है कुछ भी लिख सकते हो, d लिखा है कुछ भी लिख सकते हो, da लिखा है कुछ भी लिख सकते हो, c s बुलियन, इसमें आप वैल्यू कोई भी दे सकते हो. वेरिएबल नेम है ये वाले जो है सब वेरिएबल नेम है एंड ये सब उसके डेटा टाइप से. ओके, सो ये वेरिएबल नेम आप किसी भी तरीके का दे सकते हो एंड ये जो डेटा टाइप है वो स्पेसिफाई कर सकते हो. मीन्स ये बी है बाइट टाइप का जिसके अंदर आप बाइट वैल्यू स्टोर कर सकते हो. सो 1 बाइट की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो. तो b इज इक्वल टू 1 इस तरीके से वैल्यू इनिशियलाइजेशन होगा उसका. इंटीजर वैल्यू के लिए इस तरीके से, डबल वैल्यू के लिए इस तरीके से आप इनिशियलाइज कर सकते हो. डेट के लिए टुडे मीन्स करंट डेट आप उसमें असाइन कर सकते हो.
सी इज इक्वल टू सिंगल कैरेक्टर अगर आप स्पेसिफाई करते हो तो वो डबल कोट में भी अगर देते हो आप तो भी चलेगा, लेकिन स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसके सामने सी, सो इट विल कंसिडर एज अ कैरेक्टर। देन स्ट्रिंग वैल्यू अगर होगी तो एस में आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर डबल कोट में दे सकते हो। बुलियन वैल्यू मीन्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। सो दिस इज द एग्जाम्पल हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन योर VB.NET बाय यूजिंग अ डेटा टाइप। ओके, यहाँ तक हम रखेंगे, उसके आगे जो है वो हम आगे के इसमें देखेंगे। लेट मी शेयर द अटेंडेंस लिंक फर्स्ट।